Hello students, I'm Prachita ma'am. Welcome back to my YouTube channel. Again, this is a topic from the series NCERT Simple, and this time I'm taking the chapter from physics, and the chapter is motion in plane. So this chapter in itself is very very important. Why? Because ninth तक आप जो पढ़ते हो ना, उसमें सिर्फ motion in one dimension पढ़ते हो. One dimension means the train is moving in a straight line, the ball you have thrown vertically upward, the object is going through gravity, the object is just moving in a straight line. But in this chapter, we are going to study something new. What is that? This thing we study in class 11th only, and the basic is the motion in two dimension. That means your motion will not only in one direction, it will be in one direction as well as two direction. That means it will be in x axis as well as y axis. And the very important tool to study this chapter is the vectors. Definitely this chapter is based on vectors. So first we will study vectors, and vector is a tool, it is a mathematical tool to express any vector quantity. तो क्लास 9th में हमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया था द क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, दिस इज स्केलर क्वांटिटीज. तो उसका मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दिया. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्टेंस इज स्केलर. So why they are different? Why we are always classifying the quantities as a scalar and vector? So this is very important because स्केलर क्वांटिटीज को जब तुम सॉल्व करोगे तो यू विल टेक द एल्जेब्रिक सम. बट अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करते हो ना, तो उसको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते. यू विल हैव टू यूज अ डिफरेंट मैथमेटिकल टूल, दैट इज वेक्टर्स. वी विल स्टडी दिस टॉपिक वेक्टर्स इन दिस वेरी चैप्टर इन द मोशन इन टू डायमेंशन. सो वेक्टर्स इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्रॉब्लम क्या है कि जो वेक्टर्स की कंप्लीट स्टडी है दैट इज इन मैथमेटिक्स एंड इट इज इन क्लास 12th. So here we will study just basic vectors so that students can understand the physics. So we are studying vectors at the physics point of view. Okay, so without any delay I will start my topic, that is motion in plane, right? So in this topic first we will start that the introduction part. So we must know one thing, that what is motion in one dimension and what is motion in two dimension. As I have explained that the motion in one dimension, for example, the object is just moving in a straight line. You are going from A point to B point, just like from your home to school you are going. You're anywhere, you are going in a straight path, or you have just thrown the ball vertically upward, or you are just thrown the ball vertically downward, or you just left it, or you just dropped the ball. So this was the motion in one dimension. But here something is very very different. In this you will not throw the ball like this, or not you will drop the ball, or you will not throw the ball like this. And in this case we will throw the ball just like the cricket. So how we throw the ball in cricket? Just like a projectile. दैट मीन्स हम अपने बॉल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं. इफ आई एम जस्ट थ्रोइंग माई बॉल लाइक दिस, इट विल टेक अ पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री इज जस्ट अ पाथ द ऑब्जेक्ट टेक्स, राइट? तो एक ट्रेजेक्ट्री ऑक्यूपाई कर लेती है. तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे जो मोशन है, दिस मोशन, और यू कैन से द लोकस. लोकस मीन्स पाथ. लोकस एंड ट्रेजेक्ट्री सेम थिंग. तो लोकस जो इसका जो पाथ आ रहा है वो कैसा है? इट इज नॉट अ स्ट्रेट पाथ, इट इज अ प्रोजेक्टाइल. तो इसको स्टडी करने के लिए हमें एक टूल चाहिए, बिकॉज हम इसमें प्लस माइनस एक कन्वेंशन लेके, क्योंकि अभी तक क्या करते थे ना, लाइक अगर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और अगर इस पे 3 न्यूटन और लगा दो इसी डायरेक्शन में, सो द कंप्लीट फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बिकम 5 + 3, दैट विल बी 8 न्यूटन. और अगर तुम दोनों को अपोजिट लगा दोगे 5 हियर एंड 3 हियर, तो इट विल बी रिजल्टेंट जो इसका आएगा वो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट विल बी 2 न्यूटन. 5 - 3 will become 2 Newton because the straight line path was there. But here the velocity is not horizontal. तो यहाँ पे आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो. तो ये कभी सोचा है कि ये ऐसा ही शेप क्यों लेता है? Why it is going like this? क्या यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? यस, तो फोर्स तो यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पे भी एक ही फोर्स लग रहा था. कौन सा? When I was throwing the ball vertically upward, in that case the only force that was acting, that was gravity. तो यहाँ पे भी केवल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है. एंड इन दिस केस ऑल्सो देयर इज ओनली वन फोर्स. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे, एयर रेजिस्टेंस को हम उसमें भी नेग्लेक्ट ही करते हैं, बिकॉज एयर रेजिस्टेंस दैट इज वेरी माइन्यूट, एंड
11th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नेगलेक्ट करते हैं अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ दोनों ही केसेस में अगर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, देन व्हाई द बॉल इज टेकिंग दिस लोकस एंड व्हाई द बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। द रीजन इज दिस, इफ यू सी दैट कि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर, तो व्हेन वी प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन एंगल, तो वी विल हैव टू रिजॉल्व दैट थिंग इन टू डायरेक्शन। तो हमें देखो फॉर द कन्वीनियंस वी रिजॉल्व कहते नहीं, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो मतलब सिंप्लीफाई कर लो। तो इफ यू आर रिजॉल्विंग समथिंग तो हम उसको एक्स वाई डायरेक्शन में इसलिए रिजॉल्व करते हैं ना, बिकॉज एक्स वाई डायरेक्शन से हम बहुत फेमिलियर है, क्लास 8 से हमें कार्टेशियन प्लेन पता है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वी ऑल नो, सो वी यूज टू resolve that thing in a particular direction। and देखो ध्यान देना कि इसमें हमारे पास object is moving like this at a certain angle, तो हमें स्टडी करना पड़ता है वेक्टर। सो दिस मोशन इन 2 dimension, मोशन इन 2D, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, राइट। तो देखो होता क्या है ना कि मोशन इन अ प्लेन, तो चैप्टर इज दिस द मोशन इन अ प्लेन, राइट। तो देखो एक प्लेन है, दिस इज प्लेन, प्लेन यू नो ना, एक वॉल हो गई दैट इज अ प्लेन, एक बुक हो गई उसका एक पेपर है दैट इज प्लेन, ये बोर्ड हो गया दिस इज अ प्लेन। तो प्लेन हमारे पास एक 2D चीज होती है, राइट, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगल, सर्कल। तो सर्कल इज अ प्लेन, बट स्फीयर अगर तुम लोगे दैट इज 3D, दैट इज नॉट अ प्लेन, है ना। तो 3D ऑब्जेक्ट्स कैन हैव मल्टीपल प्लेन्स, राइट। तो हम यहाँ पे मोशन इन प्लेन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे दिस थिंग इज दैट कि यहाँ पे एकदम डिफरेंट टूल को ऑब्जर्व करना है, दैट थिंग इज योर वेक्टर्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट द वेक्टर, हमें पता ही था कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इट विल हैव अ सर्टेन डायरेक्शन। तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ इतना पढ़ा है, बट वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब नहीं पढ़ा था, राइट। तो वेक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो अगर हम देखें तो वेक्टर्स हैव अ सर्टेन डायरेक्शन, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि अगर सपोज दिस इज ए वेक्टर, राइट, तो यू कैन डिस्प्लेस इट एनीवेयर, यू कैन डिस्प्लेस इट हियर। अगर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन से ये पेन है, इसको उठा के तुम यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, तो यू कैन पुट इट एनीवेयर इन द सेम प्लेन, डिफरेंट प्लेन में नहीं। अगर सपोज करो इस बोर्ड पे एक वेक्टर लगाओ, तो इस वेक्टर को तुम यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन, यू कैन प्लेस इट एनीवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यू शुड definitely keep it in mind, right? So we all know that what is a scalar? Scalar have only magnitude, and the vectors have magnitude as well as direction. I think you all know magnitude. अगर कोई चीज 5 न्यूटन की है तो जो नंबर होता है ना that is called your magnitude, and this is called your unit. So magnitude and unit तो सब में ही होता है. Every physical quantity have magnitude as well as unit, but there are some physical quantity which have direction as well. For example, force have a certain direction, right? But mass का क्या है? कोई direction नहीं है. Time doesn't have any direction. Temperature doesn't have any direction. So they are the scalar quantities, right? So if the quantities are having magnitude as well as direction, we all know that they are called vector quantity. So now the thing starts. That is important. So first we will study vectors, and after that we know that the application of vectors are your projectile and circular motion, that is we are going to complete in this topic. So position and displacement vector. तो अगर हम ध्यान से समझे तो जो कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ले लेती हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो क्लास 8 से तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें 2,3 बनाना है तो 1 2 1 2 3, सो ये हो गया 2 एंड दिस इज पॉइंट योर इज 2,3। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, जो 2,3 इज जस्ट अ लोकेशन इन अ प्लेन। तो पता है कि प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में तुम्हें ये पॉइंट बनाना है, तो तुम इस पॉइंट को क्या लिखोगे, इफ दिस इज योर -1, दिस पॉइंट विल बिकम -1,3। तो यू कैन लोकेट एनी पॉइंट इन अ प्लेन बाय यूजिंग योर कार्टेशियन प्लेन ज्योमेट्री, और यू कैन से यूजिंग योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट। तो अगर मैं इस पॉइंट को, यू ऑल नो दैट दिस इज ओरिजिन, अगर तुम ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हो और ये एरो,
तो देखो वेक्टर में क्या होता है ना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एरो हेड, दिस गिव्स द डायरेक्शन टू द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज द टेल, राइट। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं इसको ओरिजिन से इस सर्टेन पॉइंट पे ज्वाइन कर देती हूँ तो दिस इज माई ओपी वेक्टर, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, इसके ऊपर एरो लगा के लिखना पड़ता है, तो दिस इज योर ओपी वेक्टर। एनसीईआरटी में उन्होंने जो ट्रेंड फॉलो किया उसमें उन्होंने बोल्ड से लिख दिया, कई बार उसमें एरो नहीं लगाया, लेकिन कॉपी में तो हम बोल्ड से लिखेंगे नहीं, तो वी विल हैव टू ड्रॉ एरो ऑन इट, तो हमें एरो लगाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बोल्ड टर्म यूज किया। तो अगर तुम्हें 2,3 को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमने क्या डिसाइड किया था कि कुछ एक्स एक्सिस का एक यूनिट वेक्टर, अब देखो मैंने एक नया टर्म बोला, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट नाम से पता चल रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी 1। तो इफ द मैग्नीट्यूड इज 1 देन इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, राइट। तो क्या स्पेसिफाई करेगा, वेक्टर है तो वो केवल डायरेक्शन को स्पेसिफाई करेगा, इट विल हैव जस्ट 1 मैग्नीट्यूड, राइट। तो उसके पास सिर्फ 1 मैग्नीट्यूड है एंड इट विल जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के लिए वी हैव द यूनिट वेक्टर आई कैप एंड वाई एक्सिस के लिए वी हैव डिसाइडेड द वेक्टर दैट इज जे कैप एंड फॉर द z एक्सिस के लिए हमने डिसाइड किया दैट इज योर k कैप, राइट। तो x y z, तो अब मैं अगर इसको ड्रॉ करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। तो अब ये मत सोच लेना कि ये एंगल कितना है, क्या लग रहा है, मोर देन 90 लग रहा है ना, बट दिस एंगल इज 90, भाई ये एंगल भी क्या है 90 है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90। ये जो z एक्सिस है दैट इज आउटसाइड द प्लेन, राइट। ये प्लेन है पूरा, स्क्रीन के आउटसाइड आ सकता है, इनसाइड द स्क्रीन। तो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाया है, इसके इधर जाओगे तो इट कैन बी नेगेटिव एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड जाओगे तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, इनसाइड जाओगे तो दैट विल बी योर नेगेटिव जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलराइट। तो एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। और अगर मैं सबके लिए एक एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देती हूँ सो दैट आई कैन इजीली क्लासिफाई, तो इसको हम लिखते हैं आई कैप से। तो यूनिट वेक्टर को कैप लगा के लिखेंगे और अगर कोई नॉर्मल वेक्टर है तो हम उसको एरो लगा के लिखेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड द नॉर्मल वेक्टर। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर अगर इसके लिए डिफाइन किया दिस इज योर जे कैप और इसके लिए जो डिफाइन किया दैट इज योर के कैप, राइट। सो इस तरह से हमने आई जे के वेक्टर डिफाइन कर लिए। तो मेरा जो पॉइंट था दिस वाज माय पॉइंट। तो सिंपल है, अगर ये एक्स के लिए अगर हम आई कैप यूज करें, y के लिए j कैप यूज करें तो 2,3 को, तो ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, सिंपली आई कैन राइट इज 2i प्लस 3j। तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। इसमें क्या करना, 2,3 था उसको 2i प्लस 3j, क्योंकि x वाले को मैंने क्या बोला इसको i लिख दो और इस वाले को क्या लिख दो j लिख दो। दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। तो हम किसी भी वेक्टर को अगर 3D में, जैसे कि सपोज करो तुम रूम में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, तो इसके रूम के लेंथ से तुम कुछ डिस्टेंस पे होगे और हाइट से, ब्रेथ से, तो आई जे के 3 पोजीशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अगर तुमने सपोज कोई पॉइंट लिख दिया लाइक -i प्लस 3j माइनस या प्लस 5k, यानी कि वो x एक्सिस यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस -1 पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो -1, 3, 5। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन में जो 10 तक पढ़ा था उसमें सिर्फ x और y एक्सिस होता था, यहाँ पे 3D भी हो सकता है। तो 3D में हमें यहाँ पे ये मत सोचना कि हमें 3D पढ़ना है, हमें 3D नहीं पढ़ना है। 3D में जो प्लेन्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। 3D में कितने प्लेन्स हो सकते हैं, जैसे कार्टेशियन में तो एक ही प्लेन होगा XY प्लेन, राइट। लेकिन 3D में कौन कौन से प्लेन हो सकते हैं, ध्यान देना। 3D में जो मेरे पास प्लेन हो सकता है, एक तो ये XY प्लेन हो सकता है, अगर हो सकता है ऑब्जेक्ट XY प्लेन में हो, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट XY प्लेन में है तो दैट मीन्स उसका Z क्या है, 0 है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, कौन सा प्लेन है ये, दिस प्लेन इज योर YZ प्लेन। तो अगर ऑब्जेक्ट YZ प्लेन में है यानी कि उसका x क्या है, 0 है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो सकता है ZX प्लेन में, तो ZX प्लेन में होगा तो उसका क्या होगा, y विल बी 0। इज इट क्लियर। तो हम यहाँ पे पढ़ना मुझे प्लेन ही है, तो दिस इज द प्लेनर मोशन, ऑब्वियसली मोशन इन 2 डायमेंशन। बट क्योंकि थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है और बीइंग अ PCM स्टूडेंट तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, तो जरूरत भी पड़ती है, अगर आप बायो के भी हो तो भी थोड़ा सा जरूरत पड़ती है कि इतना तो पता हो कि ऑब्जेक्ट को लोकेट कैसे करते हैं। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया कि यू कैन डिस्प्लेस द वेक्टर इन अ प्लेन, पूरे प्लेन में आप इस वेक्टर को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो। दिस इज द सेम थिंग, यू कैन डिस्प्लेस इट एनीवेयर
in a plane with the same magnitude and the same direction, right? So this is the first thing about vectors. So I think this introduction is sufficient. After that, equality of vectors is given. तो what's the meaning of equality of vectors? Suppose करो कि तुमने ये एक वेक्टर बना दिया 5 न्यूटन का, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक, एक वेक्टर ऐसा बना दिया, लेकिन एक इधर भी वेक्टर बना दिया, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 5 न्यूटन है, तो कि ये वेक्टर क्या इक्वल है? नंबर तो इक्वल दिख रहा है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो दोनों वेक्टर इक्वल होना चाहिए. नो, बट दे आर नॉट इक्वल सिंस देयर डायरेक्शन इज डिफरेंट, राइट? सो इट इज, अगर न्यूटन लिखा है दैट मीन्स इट इज अ फोर्स, एंड फोर्स में केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करेगा. तो दिस इज अ डिफरेंट वेक्टर ए एंड दिस इज अ डिफरेंट वेक्टर बी. तो अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो A and B are definitely not equal. So A is definitely not equal to B. A is equal to B only when the direction is also same and the magnitude is also same. That is called the equality of vector. I think I will show you it in the NCERT that it is given here. तो दो vectors अगर दिए हुए, इन्होंने बोला है कि the vectors are equal or not, तो ये दोनों vectors equal हो जाएंगे P and S, but they will not be equal even they have the same magnitude. So even they have the same magnitude, they will never be equal since they do not have the same direction. All right. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय द रियल नंबर्स, राइट? तो अगर मैं अपने वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ, राइट, तो अगर मेरा कोई वेक्टर है, सपोज ये 5 न्यूटन ही ले लेती हूँ, ये 5 न्यूटन का वेक्टर, दिस इज द माय ए वेक्टर, आई वांट टू मेक इट 2a. I want to make my vector, suppose एक b vector मैं बना रही हूँ, that is 2 times the a vector. So I will just have to double its magnitude. This will become your b vector. Obviously 2 into 5, this will become 10 Newton. तो direction same रहेगा. You must notice that this is the arrow, that this is the arrow. So the direction will be same, but only the magnitude. So I can multiply my vector with एनी रियल नंबर. तो अगर हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, बट इट विल डेफिनेटली नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. इज इट क्लियर? तो तुम्हें सिर्फ जैसे कि सपोज करो, तो अगर तुमने कोई एक नया वेक्टर सी ले लिया दैट इज हाफ ऑफ ए वेक्टर, तो वो 2.5 न्यूटन का हो जाएगा. इट विल बी जस्ट लाइक दिस. तो डायरेक्शन विल बी सेम, द सी वेक्टर विल बी 2.5 न्यूटन अगर मैं इसका हाफ ले लेती हूँ, राइट? तो यू विल हैव टू mind this thing that the direction must be same if you are multiplying the vector with the scalar number, right? But if you are multiplying the vector with the negative number, for example, I'm having the 5 Newton vector, 5 Newton, this is my vector A, right? तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो B वेक्टर है दैट इज -2.5 न्यूटन. तो -2.5 न्यूटन का मतलब क्या है कि ये वाला जो वेक्टर होगा, या फिर हम कहना चाहते हैं कि जो बी वेक्टर है वो माइनस का 1/2a मैंने ले लिया, तो मुझे उसके मैग्नीट्यूड को हाफ तो करना ही है, बट माइनस लगा हुआ है. माइनस मीन्स यू विल हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन. तो जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए. तो ए का डायरेक्शन ऐसा था, तो -a का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस का हाफ ए है, तो मैग्नीट्यूड 2.5 हो जाएगा, और ये जो वेक्टर बी होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड विल बिकम द हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर, राइट? तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को यू कैन मल्टीप्लाई विद एनी रियल नंबर. तो रियल नंबर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, यू ऑल नो दिस थिंग. तो वी कैन मल्टीप्लाई आवर नंबर वेक्टर विद सर्टेन रियल numbers. And now the next topic is there, that is your, I think, addition. Okay, it's given the multiplication of the vector by the real number completed. After that we have addition and subtraction of the vector. Then we have resolution of the vector. So first addition and subtraction of the vector. So I think this is again the most important topic, because addition have two different like methods to add. We have two different methods to add vector. तो addition of vector में two methods हम पढ़ते हैं. एक तो triangular method, तो triangular method है, और एक मेरे पास parallelogram method है. पैरेललोग्राम मेथड. तो मैं यहाँ पे तुम लोग को बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में कि अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल यू हैव दिस वेक्टर ए एंड यू हैव दिस वेक्टर बी एंड यू वांट टू ऐड दीज टू वेक्टर्स एंड दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम 5 + 3 8 कर देते, राइट? जैसे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में था 5 न्यूटन और
3 न्यूटन, तो ये हो जाता 8 न्यूटन, तो दे आर नॉट इन सेम डायरेक्शन, तो हम इसको ऐसे ऐड कर नहीं सकते. तो व्हाट वी विल हैव टू डू, we will have to add it using the vector addition method. तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर द क्लास 11th कि अगर तुम्हें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो ऐड कैसे करोगे. तो व्हाट इज द थिंग, तो वी ऑल नो, पहले मैं ट्रायंगुलर मेथड बता रही हूँ, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकंड मेथड. और ये वाला मेथड पैरेललोग्राम मेथड है ना, वो ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, आंसर दोनों से सेम आता है, यू विल गेट द सेम आंसर, यू कैन यूज एनी मेथड. ठीक है, तो कुछ भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. तो अगर मैं ट्रायंगुलर मेथड पहले बताऊंगी, फर्स्ट मेथड, तो अगर मुझे a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी, दो वेक्टर को ऐड करोगे, यू विल गेट द डेफिनेटली वेक्टर. तो जो भी वेक्टर आएगा मैं उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोल देती हूँ. तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b. तो पहले a को एज इट इज, मुझे वेक्टर की पहली प्रॉपर्टी पता है कि मैं इसको कहीं भी डिस्प्लेस कर सकती हूँ विद द सेम मैग्नीट्यूड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और ये जो b वेक्टर है, इसको इसके हेड पे रख दो, मतलब कि ये जो वेक्टर a है, इसके हेड पे इसको b वेक्टर को ड्रॉ कर दो. दिस इज हेड, एरो इज कॉल्ड द हेड. तो इसके हेड पे तुमने b वेक्टर को रख दिया. Now what will be the resultant? Simple. Initial point was this and final point is this. Just draw this line. तो एरो कहाँ बनाना है रिजल्टेंट का तुमको? रिजल्टेंट का एरो इनिशियल पे टेल रहेगा और फाइनल पॉइंट की तरफ एरो रहेगा. फाइनल पॉइंट वाज बी, सो दिस इज योर a प्लस बी. दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट. दिस इज योर a प्लस बी वेक्टर. तो अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो जस्ट डायरेक्टली ऐड नहीं होती है. दिस इज, दे आर एडेड बाय द वेक्टर एडिशन. तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर सम. तो आई थिंक द ट्रायंगुलर मेथड इज सिंपल. तुम्हें क्या करना है, एक वेक्टर लेना है, दूसरे को उसके हेड पे रखना है और ये रिजल्टेंट बन जाएगा. राइट, दिस इज द रिजल्टेंट. तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रायंगुलर मेथड. इफ आई विल गो फॉर द पैरेललोग्राम मेथड, आई विल गेट द सेम आंसर. इसमें तुम्हें क्या करना है, वेक्टर ए ये था, ऐसे ही वेक्टर ए को यहाँ पे बना सकते हो, पूरे प्लेन में कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो ना, तो यहाँ बना दिया मैंने. अब दोनों को उसके हेड पे मत रखना, इस बार क्या करना है, दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करो. तो इस वेक्टर बी को मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, कर सकते हैं. दिस इज द वेक्टर बी. राइट, अब तुम्हें इससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है. जस्ट कंप्लीट अ पैरेललोग्राम. तो आफ्टर दैट जो इसका मेन डायगोनल होगा, मतलब जो दोनों के टेल्स के बीच से यहाँ से जो डायगोनल आएगा, दिस विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज योर रिजल्टेंट, दैट इज योर a plus b vector. Right, you can simply see that this a plus b and this a plus b are same because you can displace it anywhere. You can use any method, you can use triangular method or parallelogram method, you are going to get the same answer. Right, so this is very very simple. So you can add any vectors. अगर it is definitely commutative also, अगर तुम a में b को add करोगे, you will get the same resultant, or you can add b to a. तो a और b add करना, b और a add करना is same thing. Right, so I think you all can add the vectors. Even we can add 3 vectors by the triangular method. तो triangular method में क्या है, अगर मैं a b c 3 vectors को add कर देती हूँ, तो अगर मुझे a plus b plus c 3 vectors को add करना है, एक वेक्टर a यहाँ दे दिया है, b एक ऐसा वेक्टर दिया है और c सपोज कर लेते हो ऐसा दिया, इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. तो क्या करो, सबसे पहले a वेक्टर ड्रॉ कर लो, तुम्हें पता है यू कैन डिस्प्लेस इट एनीवेयर. फिर उसके हेड पे ही तुमको b वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन b ड्रॉ कर लो. फिर इसके हेड पे तुमको इसी मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन का c वेक्टर ड्रॉ करना है. और फिर इनिशियल पॉइंट वाज व्हाट, दिस वाज माय इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. दोनों को बस ऐसे ज्वाइन कर लो और जो हेड रहेगा वो फाइनल वाले की तरफ रहेगा. तो दिस इज द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट मीन्स वेक्टर सम ऑफ a b एंड c. तो एल्जेब्रिक सम वेक्टर सम होता क्या है? एल्जेब्रिक सम में क्या होता है ना कि अगर हमें 2, 3 और 5 को ऐड करना है, तो तुम नंबर्स ऐड कर लेते हो. 2 + 3 5 एंड 5 + 5 10. तो अगर तुम्हें मास ऐड करना था, फॉर एग्जांपल 2 kg 3 kg 5 kg, तो तुमने अभी तक ऐसे ही ऐड कर दिया था. तो मास वाज डेफिनेटली स्केलर, यू कैन ऐड इट लाइक दिस. बट अगर तुम्हें फोर्स ऐड करना है, तो क्लास 10th तक हम जो पढ़ते थे ना, वो सब सेम डायरेक्शन में होते थे, तो वो ऐसे ही ऐड हो जाते थे. तो लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. वेक्टर्स कैन बी इन डिफरेंट डायरेक्शन, दे हैव फिक्स डायरेक्शन. यू कैन नॉट ऐड देम लाइक, अगर कोई वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो तुम इसको डायरेक्टली, ये 5 न्यूटन का है और ये 3 न्यूटन का, मैंने कहा इन दोनों को ऐड करो, आंसर इज डेफिनेटली नॉट 8.
तो you will have to मतलब add them by the parallelogram or the triangular method, then you will get the resultant. ठीक है, चलो resultant हमने graphically सीख लिया, but how we can find the magnitude and direction of the resultant vector? So next point is, I think this is the next point in the NCERT. So I have completed the addition, right? So addition and subtraction was also there. Subtraction, I will also tell you what is that. Subtraction is nothing but the reverse addition. Remember this thing, what I have said, that subtraction is not a different thing. Subtraction is nothing but the reverse addition. For example, अगर मैंने कहा 5 में -3 add करो, just add -3 to 5, तो what you will get? 2. तो this is 5 minus 3 भी अगर करते, मैं कहती subtract 3 from 5, तो again the answer is 2. तो subtraction और addition कुछ नहीं होता, वो सेम चीज होता है. अगर तुम नेगेटिव नंबर ऐड कर देते हो, that is subtraction itself. For example, अगर मुझे a minus b करना है, a वेक्टर में b वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, एंड a वेक्टर इज लाइक दिस. मैं यहाँ बनाती हूँ, अगर a वेक्टर ऐसा है एंड द b वेक्टर इज लाइक दिस, तो इस बार मुझे a प्लस b नहीं करना है, a माइनस b करना है. तो क्या करोगे, दिस इज योर a वेक्टर, उसको सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड बना दिया, एंड व्हाट इज b वेक्टर? b वेक्टर हो जाएगा ये वाला वेक्टर. ये b वेक्टर है, तो डेफिनेटली माइनस b क्या होगा, उसका रिवर्स होगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन. सो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर, और माइनस बी वेक्टर को मैं ट्रायंगुलर मेथड से कर रही हूँ, तो अगर मैं इसके हेड पे माइनस बी वेक्टर रख देती हूँ, तो दिस इज माय माइनस बी वेक्टर, और ये है मेरा इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. तो a माइनस बी. तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव एट ऑल. तो इट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. जो a माइनस बी वेक्टर है दैट इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, क्योंकि इसमें यू आर गोइंग टू रिवर्स द बी वेक्टर एंड इन दिस यू आर गोइंग टू रिवर्स द ए वेक्टर. तो ध्यान देना इस बात पे. तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव एंड रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका सेम, चाहे तुम एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, बस सब्ट्रैक्शन में हम जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसका रिवर्स वेक्टर को ऐड कर देते हैं, राइट. तो आई थिंक दिस इज क्लियर. तो हाउ टू ऐड इट ग्राफिकली, बट नेक्स्ट थिंग इज दैट हाउ वी कैन फाइंड द magnitude and direction of the resultant vector. I think after that the example 3.1 is given in the NCERT. So first I will cover the example. The example is this. In this, what is that? Rain is falling vertically with the speed 35 meter per second. So rain is falling with the speed 35 meter per second. Winds falling vertically. तो मैं यहाँ draw कर देती हूँ. तो rain is falling like this, 35 meter per second, and wind is blowing after some time with the speed 12 meter per second in the direction east to west. I think सब लोग जानते हो, this is east, this is west, this is north and this is south, and wind is flowing like this. तो wind is flowing from east to west. तो ये direction of wind हो गया. In which direction should the boy waiting at the bus stop should hold the अम्ब्रेला? तो इन विच डायरेक्शन. तो देखो यहाँ पे हो गया है, जस्ट क्वेश्चन को इमेजिन कर लिया करो. तो विजुअलाइजेशन पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम उस चीज का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज द प्रॉब्लम. अगर तुम उसको समझ पाते हो तभी बेटर होता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है, राइट. तो अगर रेन इज फॉलिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, है ना, एंड स्पीड इज ऑल्सो गिवन. स्पीड इज व्हाट, दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे मुझे दिया है कि विंड इज ब्लोइंग लाइक दिस. विंड इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट. तो ईस्ट से वेस्ट, तो एरो इस तरफ बनाओगे, और वर्टिकली डाउनवर्ड तो मैंने एरो इधर बना दिया, एंड तुम्हारा जो विंड है वो इस डायरेक्शन में कह रहा है. तो मैं विंड का डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड दैट इज गिवन 12 मीटर पर सेकेंड. ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन 35 मीटर पर सेकेंड. तो इन विच डायरेक्शन, तो जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो विंड है और रेन है, उसका जो रिजल्टेंट है, अगर उसके डायरेक्शन में तुम अम्ब्रेला होल्ड करोगे तो यू विल बी एबल टू, तुम उससे बच जाओगे. लाइक यू मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन रिजल्टेंट टू द विंड एंड द रेन. तो इन दोनों का बस तुम्हें ओवरऑल क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है. तो अगर हम पैरेललोग्राम से देखें, देखो दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे इनके डायगोनल से आ जाएगा. तो दिस इज द रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में तुम्हें अम्ब्रेला को होल्ड करना है, सिंपल. तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन, अच्छा ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं बताया. तो मैग्नीट्यूड, आई थिंक आई शुड टेल यू द मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, अगर तुम
यहाँ पे बिना मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से भी चाहो तो पाइथागोरस से भी कर सकते हो। देखो पाइथागोरस से कैसे कर सकते हो, अगर ये सोचो तुम इसको डिस्प्लेस कर दो यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो 12 न्यूटन है इसको तुम यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकते हो 12, ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक। तो अगर पाइथागोरस से देखोगे तो यहाँ 35 है, यहाँ 12 है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वी आर की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इज 144 एंड 35 स्क्वायर अगर तुम कर लो, 35 स्क्वायर कितना होगा, 35 इंटू 35 इज 1225 और इसमें 144 और ऐड कर देते हो, सो दिस इज 1369, 1 अंडर रूट ऑफ 1369, इसका स्क्वायर रूट ले लो 1369, तो यू विल गेट 37, सो द वेलोसिटी विल बी, तो रिजल्टेंट की जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 37 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल जो रेन आएगी वो किस स्पीड से आएगी, ठीक है, दैट स्पीड विल बी 37 मीटर पर सेकेंड। वो समझ में आ गया कि एक्चुअल में हवा की वजह से उसको जो स्पीड लगेगी रेन की वो 35 मिली, जबकि रेन तो तुम्हारा 35 से आ रहा था, लेकिन उसको 35 की स्पीड से रेन फील नहीं होगा, रेन किस स्पीड से फील होगा उसे, 37 मीटर पर सेकेंड से। और अगर उसे अम्ब्रेला होल्ड करना है तो विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला, तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि यहाँ पे रेन से वो थीटा एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड कर रहा है, तो मैं tan थीटा यहाँ से निकाल सकती हूँ। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो गया, तो दिस इज 12/35, तो 12/35 अगर यूज कर लोगे तो दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 35 इज 0.342, तो tan थीटा इज दिस। तो अगर tan थीटा 1 वगैरह आ जाता तो तुम्हें पता चलता 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन tan थीटा ऐसा कुछ डेसिमल में आएगा तो तुम आंसर को ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स 0.342। और इफ यू हैव द साइंटिफिक कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड नहीं होता, बट अप्रॉक्सीमेट तुम वैल्यू अगर ऑप्शन में अगर फिर ऐसे दिया होगा, नहीं तो उसकी वैल्यूज दी होती है, और नहीं तो फिर कुछ ऐसी वैल्यूज आती है जो नोन वैल्यूज होती है। और आईसीएससी में आईएससी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो दे कैन जस्ट यूज द कैलकुलेटर, और अपने कॉन्फिडेंस के लिए बाकी लोग भी जस्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट के साथ अगर हम tan को यूज करते हैं तो शिफ्ट और tan वी विल गिव द tan इनवर्स, और tan इनवर्स से ब्रैकेट लगा के तुमको करना है 0.342, तो यू विल गेट 18.88 आ रहा है, क्या आ रहा है 18.8, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री। तो 19 डिग्री फ्रॉम व्हाट, 19 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रेन, यू मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला at the angle 19 degree from the vertical, right? तो you must mention this thing कि 19 degree कहाँ से use करो, ठीक। तो I think the question is clear। तो rain was falling like this and wind was blowing like this, तो 2 dimension was there, and जो हमें रेन की स्पीड फील होगी वो ना तो 35 ना तो 12, उनके रिजल्टेंट वाली फील होगी। तो मैंने उसको, क्योंकि 90 डिग्री पे थे तो हमने पाइथागोरस से निकाल दिया, अगर 90 पे नहीं होता तो उसके लिए I have the different thing, so I will cover it in the next video because I think the video is getting too long. Okay, thank you, and to practice more questions you can join my classes. Okay.